Hey friends, my name is Aarti and I'm live here on YouTube today. Mostly I used to come live on my Instagram channel, but now I thought let's connect with some of our subscriber on YouTube. So I'm here. So, guys, basically, we have started a series called Quillathon, and as per that series, this is the very first episode of the series, and I will be coming live for the whole coming week. For currently, I have kept it for a week only, and we can also extend it if people join with us or I like to do it more, then we can continue it for some more days. But for now, I have initiated for 1 week. So I hope I'm audible to everyone and visible to. Okay. So Quillathon, as the name says, Quillathon. So it's basically about quilling. So we'll be creating different things in these 7 days, and in all of the things, quilling will be included. Quilling will be the king, we can say. So like whatever craft, whatever things we'll be doing, we will include quilling in that. Okay. So I think we can start for today. And yes, you can also give your ideas like what we can do in the coming 7 days related to quilling. Like if there is anything particular you wanted to learn or any shape or something like that, earrings, jewelry, anything. So hello. So you can just comment below or on any other social media site also you can connect with me. I will be there with the name of Raw at Craft. Okay, so you can connect with me over there. So today, one of my subscribers suggested me to do. तो आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि एज द क्रिसमस इज अप्रोचिंग तो कैन वी मेक समथिंग रिलेटेड टू क्रिसमस देन व्हाई नॉट वी कैन सो आज हम जो बनाने वाले हैं वो होगा एक क्रिसमस डेकोर पीस जो कि बहुत ही सिंपल टू मेक है इसीलिए आज की फर्स्ट एपिसोड में फर्स्ट क्लास में मैं आपके लिए वो लेकर आई हूँ एंड देयर इज वन मोर थिंग like related to Christmas, I also created one card. In this card, I have used the iris folding technique. Just now, it just came to my mind. Like we are doing a quillathon for quilling. Same way, we can have sessions for the iris folding also because I have seen there are many people who wanted to learn iris folding, but as the technique is not that popular मोस्टली हियर इन इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अभी आरिस फोल्डिंग तो लोगों को थोड़ा सा क्रेज़ है एंड थोड़ा प्रॉब्लम भी वो लोग फेस करते हैं कि हम इसको कैसे कर पाएँ तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई इश्यू कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स तो ये वो कार्ड था आई जस्ट ओपन इट फॉर यू ऑल सो इट इज़ ब्लैंक फ्रॉम इनसाइड आप जो चाहें अपना मैसेज लिख सकते हैं और ये वो आइरिस फोल्डिंग कार्ड है जिसका कि वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और ये इतनी मुश्किल टेक्निक नहीं होती बट यू जस्ट नीड टू हैव वेरी स्टेडी हैंड्स जो कि आपको पता है हर क्राफ्ट में चाहिए होता है और थोड़ा सा डेडिकेशन तो आइरिस फोल्डिंग इतना टफ नहीं है नॉट दैट क्विलिंग इज लाइक विल डू इट राइट नाउ सो यू विल फील इट इज़ नॉट दैट टफ तो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना एक क्रिसमस डेकोर ओके आई होप आप सबको वो बहुत बहुत अच्छा लगेगा तो चलिए मैं कर रही हूँ अभी यहाँ पर आई एम जस्ट बिट कंफ्यूज्ड अबाउट द कलर्स बट ओके आई एम चूजिंग दीज टू कलर्स सो दिस इज अ शेड ऑफ ग्रीन and wait a second and this shade this is something shade of a blue we can say so I'm just using these two shades आपके पास जो भी कलर्स अवेलेबल हों आप उनका यूज़ कर सकते हैं जो भी स्ट्रिप्स अवेलेबल हों आप उनका यूज़ कर सकते हैं तो मेरे पास अभी ये स्ट्रिप्स हैं तो मैं इनका यूज़ कर रही हूँ
और स्ट्रिप्स में भी ऐसा नहीं है कि लाइक मेरे पास जो स्ट्रिप्स हैं वो 1 सेंटीमीटर की हैं, दैट इज़ 10 mm। और अगर आपके पास स्ट्रिप्स जो हैं वो कम लाइक कम मेजरमेंट की हैं, लाइक 5 mm की हैं, देन यू कैन ऑल्सो यूज़ दैम टू। सो देयर इज़ नॉट एन इश्यू। सो क्रिसमस डेकोर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है ये शीट, एंड दीज शीट्स आर ऑलमोस्ट okay, I'll let you know the size, but you can make it as per like your liking and your wish. So it's around 35 centimeters. Okay, so one strip is 35 centimeters. So what I'm doing is, firstly glue is needed, so I'll just let you know the materials that you'll be needing. So scissors if you have, and strips. Obviously without strips we cannot do quilling. And the third thing is glue is must. So we'll just put some glue on some of our rough surface. So I'm having this rough paper, so I'm putting some glue over here. Okay, so I got the glue over here. So firstly I need to make a round, like a center. So what I'll do is, this is my strip, I'll just give it a curl like this with my hands only. Okay, and then if you have any rounded thing like this, if you have any, अगर आपके पास कोई ऐसी राउंडेड चीज़ है, आप इसके, यस आई विल ट्राई स्पीकिंग इन हिंदी, एंड तो आप इसको ऐसे रिवॉल्व कर सकते हैं इसके अराउंड, और आप इसे ऐसे राउंड बना सकते हैं। ओके, तो अब आपको देखना होगा कि आपको कितना बड़ा राउंड सर्कल चाहिए, लाइक आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं उसे। ठीक है, तो अगर मुझे इससे छोटा चाहिए तो मैं इसे ऐसे कर सकती हूँ। ठीक है, और ज़रूरी नहीं भी है कि मुझे, जैसे मैंने इसको हल्का सा कर्ल कर दिया, कर्व करा है जिस मैंने, देखो आप डिफरेंस देख पाओगे, ये एक स्ट्रेट स्ट्रिप है ना, और इस स्ट्रिप को मैंने कर्ल किया है, दोनों में आप डिफरेंस देख पाएंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रिप को मैंने कर्ल किया है, तो ये ऑलरेडी कर्व हो गई है। ठीक है, अब मैं इस स्ट्रिप को डायरेक्टली ग्लू लगा के फोल्ड कर सकती हूँ। अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि इसे किसी सरफेस के अराउंड रोल करने की, बट क्योंकि मेरा ये पेपर जो है वो थोड़ा सा हायर जीएसएम का है, इसलिए इट्स ईजी फॉर मी टू लाइक फोल्ड इट। बट अगर आपका पेपर थोड़ा सा लोअर जीएसएम है, जीएसएम इज़ बेसिकली द डेंसिटी ऑफ द पेपर। ठीक है, कि वो कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट लाइट है। ठीक है, तो इसको मैं इसके अराउंड ऐसे करके, आप किसी ग्लू की बॉटल या कोई भी आपके पास राउंड चीज़ होगी तो आप उसके अराउंड इसको ऐसे रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं देखूंगी कि मुझे ये कितना लाइक कितना चाहिए, तो मुझे लगता है मुझे इतना बड़ा चाहिए। ठीक है, तो ये साइज़ आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप पहले ट्राई कर सकते हैं छोटा बनाना, एंड देन उसके बाद आप बड़ा बना सकते हैं। ओके, और छोटा बनाने से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इफ़ यू विल स्टार्ट विद लाइक स्मॉलर स्मॉलर थिंग्स, तो वो चीज़ें बेसिकली थोड़ा सा कम टाइम लेंगी और जल्दी बन जाएंगी, जिससे कि वो आपको और कॉन्फिडेंस देंगी कि आप और उसको और बनाओ, एंड you will find it quite interesting. Hi. Yes, Kamal, I remember you. So here is this circle I'm making. Okay. तो अब इसको मुझे करना है रोल। ओके, अब मैं इसको इजीली ऐसे भी रोल कर पा रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सो इट्स नॉट दैट टफ, इट्स वेरी सिंपल टू मेक। और इसीलिए फॉर द वेरी फर्स्ट एपिसोड आई एम कमिंग अप विद द सिंपल थिंग्स। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स अ क्विलेथॉन सीरीज, और हम इसको पूरे 1 वीक तक रन करेंगे, लाइक एवरी डे। लाइक टुडे आई एम कमिंग लाइव एट 6, but from tomorrow onwards I'll be coming live around 8:30 or 9. I'll just update it and then you can see. So because there are many working people also who wanted to like attend this session, so they just requested me if I can do it after 7 or after 8. So I said yes, it's fine. But as today it's Sunday, so I thought of coming a little live a little early.
So here you can see I have already rolled one full strip of paper and now it's looking something like this. Okay. अब अगर मुझे लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत पतला है, ठीक है, यू वॉन्टेड टू मेक दिस रोल अ लिटिल बिगर, तो आप इसके साथ में एक और स्ट्रिप को रोल कर सकते हैं. ठीक है, देखो. सो कैन यू सी माई रोल? थैंक्स. यस. तो मैंने जैसे अभी कहा कि बिग फ्रेम, ऑब्वियसली आप बिग फ्रेम बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. फिनिशिंग की अगर आप बात करो तो लाइक फिनिशिंग तो विद टाइम आएगा. ऐसा नहीं होगा कि आपने आज क्विलिंग किया और आज ही आपका एकदम प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट आपके सामने रेडी मिलेगा. नो, इट टेक्स टाइम. सो विद टाइम फिनिशिंग ऑटोमेटिकली कम्स. और उसको मतलब हम बहुत सारी कुछ टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज़ करके उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में लाइक कन्वर्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहला जो टिप मेरी तरफ से होगा फॉर अ फिनिश प्रोडक्ट, सो लाइक दिस. आपने देखा, अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा मुझे इसको और थिक बनाना है, तो मैं एक और स्ट्रिप इसके अराउंड रोटेट कर रही हूँ. यस. सो आई वॉज लाइक कि अगर आपको उसको और फिनिश्ड लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट ना, या तो सबसे पहला ट्रिक यही है कि आप कम से कम ग्लू का यूज़ करो. क्योंकि जितना अगर आप ग्लू ज़्यादा यूज़ करेंगे वो आपके जो भी आप बना रहे हो उस पर स्प्रेड होगा. और वो कहीं ना कहीं आप उसको कितना भी क्लीन कर लो, वो बाद में विजिबल होगा उस पर. और जो कि आपके पूरा जो आपने बनाया है, लाइक पूरा आपने जो इतना मेहनत करके आर्ट वर्क बनाया है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब कर देगा बेसिकली. तो एक तो हो गई ये टिप. देन सेकंड इज कलर कॉम्बिनेशन. कलर कॉम्बिनेशन इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट. क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के वर्क देखे हैं जिसमें कि उन्होंने लाइक बहुत ज़्यादा इन डिटेल मेहनत करी है, बट इफ़ इट्स अ रॉन्ग कलर कॉम्बिनेशन इट विल ruin it all. Okay. So color combination is also something you like need to see first before making that. क्योंकि एक बार बनने के बाद आप उसमें कोई ऐसा कोई चेंज नहीं कर सकते हो. या फिर आपको थोड़ा सा नॉलेज उसका भी रखना पड़ेगा कि अगर आपने कोई दो कलर यूज़ किए हैं तो उस कलर को आप कैसे लाइट कर सकते हैं. जैसे अगर आपने दो दो डार्क शेड्स यूज़ कर लिए, अब ऐसा ना हो कि उन डार्क शेड्स की वजह से आपका जो प्रोजेक्ट है वो पूरा ही डार्क लगता चला जाए. तो उसमें आप ऐसा क्या फिर कौन सा कलर मिक्सअप कर सकते हो कि वो उसको थोड़ा लाइटर टोन दे. यस, ये पूरा 1 वीक चलने वाला है. और अगर अच्छा रहा, लोग जुड़े और अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो विल कंटिन्यू इट फॉर मोर वीक्स ऑल्सो. सो लाइक ग्लू का एक टिप तो यही है कि मैंने अभी इसमें जो ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, तो अभी मैं चाहती तो डायरेक्ट ग्लू फेविकॉल की बॉटल से भी मैं इस पर ग्लू लगा सकती थी. बट वही कि ग्लू बहुत ज़्यादा ना लग जाए, बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो, तो मैंने ग्लू, आप देखोगे मैंने ग्लू इस पर लिया हुआ है. किसी भी आप एक रफ सरफेस पे ग्लू ले सकते हैं. ठीक है. एंड आफ्टर दैट आप कोई मैच स्टिक ले लीजिए. मैच स्टिक ले लीजिए या कुछ भी आप ऐसा ले लीजिए और जिससे आप ग्लू को इस पर अप्लाई कर सकते हैं. See, it depends. You can see the circle I have created. So I have just used 2 strips because my paper is of a little higher GSM. So you can maybe use a little 4-5 strips if your paper is of lighter GSM. Okay. तो ये है मेरा सर्कल, यू कैन सी. ओके. तो अब सर्कल के अराउंड मैं कुछ करना चाहती हूँ. सो आई एम टेकिंग this strip and I'm folding it into 2 parts because मुझे ये इतनी बड़ी स्ट्रिप नहीं चाहिए. तो मैं इसको दो पार्ट्स में कट कर लूँगी एंड देन आई विल मेक अ कॉइल. ओके. अब क्विलिंग का फर्स्ट बेसिक कि हम कॉइल्स कैसे बनाते हैं. ठीक है.
आई डोंट लाइक आई कोई क्वेश्चन था शायद, आई मिस्ड आई थिंक। ओके, एक आर्टवर्क में कितना टाइम लेते हैं? तो एक आर्टवर्क का टाइम डिपेंड करता है कि वो आर्टवर्क क्या है, उसमें कितना लेवल ऑफ वर्क है, वो सब उस पर डिपेंड करता है। लाइक इफ़ इट्स मोर ऑफ ऑन एज क्विलिंग डिटेल्ड वर्क देन ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, समटाइम वीक्स एंड समटाइम्स मोर देन वीक्स ऑल्सो, एंड समटाइम्स इन डेज ऑल्सो वी कैन complete. So it totally depends upon the work और वर्क का साइज कितना है। और बहुत बार ऐसा भी होता है, मतलब हमेशा यही नहीं होता है क्विलिंग में, जैसे लोग देखते हैं कि ओ ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें टाइम लगा होगा, ये तो छोटा है इसमें क्या टाइम लगा होगा, इट्स वेरी इजी टू मेक। बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट इन क्विलिंग, बिकॉज द स्मॉलर द प्रोजेक्ट इज द डिफिकल्ट इट बिकम्स टू लाइक हैंडल द पेपर। बिकॉज अगर आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो आपको उसमें कर्व बनाना है, तो इट्स ईजियर टू मेक अ कर्व, यू हैव टू जस्ट पेस्ट इट लाइक दिस। But if it is like little smaller, then you have to give it more of the shapes, and then you have to see like it's appropriate, वो अपनी प्रॉपर जगह पे हम उसको प्लेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो छोटे प्रोजेक्ट्स भी बहुत बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो लाइक पीपल बेसिकली जज द प्राइस एज पर साइज, तो ऐसा नहीं होता है। एंड रिसेंटली आई ऑल्सो लाइक गॉट माई नेम रजिस्टर्ड इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो उसमें भी मैंने जो है वो क्विलिंग का सबसे छोटा लाइक पांडा बनाया था। इट वॉज अराउंड 1.8 सेंटीमीटर्स, सो इट वॉज रियली स्मॉल एंड येस इट वॉज डिफिकल्ट टू मेक। लेट पीपल से वट एवर दे हैव टू, बिकॉज अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द आर्ट। सो जस्ट डोंट लिसन टू दोज पीपल। तो देखो आप लोग, अब मैंने ये दिस इज माई क्विलर, और ये मैंने एक टाइट कॉयल बना दिया है। ओके, सो यू कैन सी मैंने एक टाइट कॉयल बना दिया है। और अब दिस इज़ समथिंग, अगर ये आपके पास नहीं भी है तो भी आप वर्क कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ नोन एज अ क्विलिंग बोर्ड। ओके, तो ये बोर्ड है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। आप जैसे मैंने एक ये टाइट कॉयल बनाया, अब इसको मुझे लूज़ कॉयल में कन्वर्ट करना है, और मुझे बहुत सारी लूज़ कॉयल्स चाहिए सेम साइज़ की। तो अब मैं उसको कैसे डिफाइन करूँगी कि वो सेम साइज़ होना चाहिए? तो इसीलिए मैंने ये एक टाइट कॉयल बनाया, और इसको मैं यहाँ पर जैसे कितना भी मुझे साइज़ चाहिए तो मैं उसके हिसाब से, जैसे मेरे को ये हॉट वाला मैं इस पर प्लेस कर रही हूँ कि हाँ मुझे इससे बड़ा साइज़ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको इसमें प्लेस किया, या फिर किसी भी और में आप इसको प्लेस कर सकते हैं, एंड इट विल गिव यू दैट अप्रॉक्सीमेट साइज़। और उसके बाद आप इसको शेप कर सकते हैं, जो भी आप इसे शेप देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं एक और बार आपको बता देती हूँ लाइक हाउ इट। सो दिस इज़ योर स्ट्रिप। और टाइट कॉयल बनाने के लिए, ठीक है, टाइट कॉयल बनाने के लिए आई एम टेकिंग माई क्विलर एंड आई एम जस्ट पुटिंग दिस इनसाइड, यू कैन सी, एंड नाउ आई विल स्टार्ट रोलिंग इट, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिक स्टेप फॉर लाइक क्विलिंग। सो दिस इज़, सो अगर आप क्विलिंग में एकदम नए हैं एंड यू वांट ट्राई क्विलिंग, यू आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन यू कैन ट्राई मेकिंग टाइट कॉइल्स फर्स्ट। ओके, सो दिस इज़ द टाइट कॉइल। सो अब टाइट कॉइल से जब हम लूज़ कॉइल में जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि हमारी लूज़ कॉइल्स परफेक्ट नहीं बनती, उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, ये है वो है। सो श्योर श्योर अच्छे से बनाऊंगी। सो दिस इज़ द टाइट कॉल, ठीक है। अब इसको मैंने थोड़ी देर अपने हैंड्स में इसको पकड़ा है, उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पर प्लेस करूँगी तो ये ओपन बहुत अच्छे तरीके से होगा। ओके, पूरे वीक हम क्या क्या करने वाले हैं, आई जस्ट आंसर इट। सो ये मैंने टाइट कॉयल बनाया है, उसके बाद मैं इसको ऐसे करके होल्ड करूँगी वन साइड से, और सिर्फ वन साइड से पुश करूँगी। सो यू कैन सी मेरे पास एक ऐसा टीयर ड्रॉप शेप आ जाएगा, ठीक है। आई हैव गॉट दिस काइंड ऑफ अ टीयर ड्रॉप शेप।
अब मैं जल्दी से ग्लू लूँगी, इसको पेस्ट कर दूँगी। सो पूरे वीक हम क्या क्या करने वाले हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन विच आई एम गेटिंग। पूरे वीक हम क्या क्या करने वाले हैं, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड इन द स्टार्टिंग। yes, obviously you can suggest कि हम क्या कर सकते हैं, like I can come up because there are many people who like want to do typography type of quilling, honest type of quilling, तो आप मुझे बता सकते हैं, then I can plan it accordingly। like आज का मेरे पास था किसी like कि क्रिसमस डेकोर के लिए आप कोई चीज़ बता सकते हैं क्या, तो I thought let's come up with the Christmas decor। so you can see this is the tight coil। तो आज हम क्रिसमस डेकोर कर रहे हैं, कल भी हम क्विलिंग से ही रिलेटेड कुछ करेंगे, तो आप अपनी स्ट्रिप्स के साथ तो ज़रूर रेडी रहिएगा। बाकी मैं कल मॉर्निंग में एक बार जब मैं ये आपका पोस्ट डालूँगी, तो अगर आपका कोई सजेशन है आप मुझे आज रात तक, कल सुबह तक भेज सकते हैं। तो इन लाइक टुमारो मॉर्निंग आई विल प्लान एंड देन आई विल लेट यू नो व्हाट विल बी डूइंग। ओके, तो अभी तो हमें ऐसे ऐसे बहुत सारे टीयर ड्रॉप शेप्स बनाने हैं, तो मैं उसे बनाने की तरफ बढ़ती हूँ। अगर आप मेरे साथ बना रहे हैं तो आप भी बना सकते हैं। क्रिसमस डेकोर क्रिसमस से हम पहले कर रहे हैं, इसलिए ताकि अगर किसी को क्रिसमस पर कुछ ऐसा डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाना है तो वो लोग इजीली बना पाएँ, एज अभी बहुत सारा एम्पल ऑफ टाइम है, तो इसीलिए। वेयर डू आई बाय माई क्विलिंग मटेरियल। तो क्विलिंग मटेरियल ऐसा नहीं है कि मेरा कोई एक पर्टिकुलर शॉप डिसाइडेड है और मैं वहाँ से जाके परचेज़ कर लेती हूँ, एंड इट्स नॉट दैट सिंपल। क्विलिंग मटेरियल जहाँ से भी मुझे अच्छा लगता है, जहाँ का मुझे पेपर क्वालिटी अच्छा लगता है, या कभी मैं कोई ब्रांड के लिए जाती हूँ, कभी मैं कोई ब्रांड लाइक किसी ब्रांड में कोई कलर्स बहुत अच्छे हैं, किसी ब्रांड में, तो इट्स लाइक आई बाय इट फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, जहाँ से भी मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है। या श्योर, यू ऑल शुड प्रैक्टिस। तो अभी आप अगर अभी अभी आप जुड़े हैं, अभी अभी आप आए हैं, तो यू कैन सी हम ऑलरेडी एक सर्कल बना चुके हैं। आप ये सर्कल्स बना सकते हैं, एंड आई एम मेकिंग दीज टीयर ड्रॉप शेप्स, तो आप ये टीयर ड्रॉप शेप्स बना सकते हैं। ओके, thank you so much for subscribing, and yes, people do subscribe to the channel for more of such videos. Sometimes I buy offline, sometimes I buy online because I stay in Delhi, so there are a lot of markets over here where for stationery I can visit and I can like buy. And in every place wherever you stay, there are markets where stationery materials are available, so you can just easily get all of the materials. And quilling is something I feel ki which doesn't needs a lot of material. Why do you want to know my age? What's behind that? So quilling material you can buy from any of the shops nearby. Okay. क्विलिंग मटेरियल आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कुछ अच्छा दिख रहा है तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए। आप ऑफलाइन क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मैं किसी मार्केट में गई हूँ, वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ अच्छी लग जाती है तो आई जस्ट परचेज़ इट फ्रॉम देयर। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पेपर क्वालिटी, यस। ओके, अभी करेंटली आई एम मेकिंग दिस टाइट कॉइल।
ओके, एंड देन टाइट कॉयल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं लूज़ कॉइल्स में। अब इसका क्या यूज़ होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगी। सो करंटली अभी आज की क्लास में हमारा मेन फोकस है टाइट कॉयल एंड लूज़ कॉयल, और टाइट कॉयल और लूज़ कॉयल से भी हम कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें बना सकते हैं अभी हम वो देखने वाले हैं। So there are many options available online. There are many things available on Amazon. You can try that. तो अभी मैंने बहुत सारे लाइक 1 2 3 4 आई हैव मेड 6 टीयर ड्रॉप शेप्स. Yes, sure, I'll give you the recaps. Do not worry. सो यू कैन सी, अगर मैंने फेविकॉल साइड में निकाल के रखा है तो इट बिकम सो ईजी टू अप्लाई द ग्लू, और बहुत ज़्यादा ग्लू भी आप अप्लाई नहीं करते हैं जिससे कि आपका जो वर्क है वो क्लीन लुक आपको देगा. ठीक है, तो 3 3 का पेयर में हमें चाहिए होगा, इसलिए आई एम मेकिंग मोर एंड मोर, जो कि हम इसके साइड्स में लगाएंगे, जो कि मैं आपको भी बताती हूँ. तो अभी वी आर मेकिंग द टाइट coils and converting them into loose coils and then converting them into teardrop shapes. Okay, so this is the basic thing which we are doing right now. बट अगर आपको क्रिसमस डेकोर बनाना है, या फिर अगर आप लाइव नहीं देख रहे, आप बाद में कभी ये वीडियो देखेंगे, तो इट्स अ सजेशन कि आप साथ साथ बनाइए, वीडियो देखते जाइए, सो इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू ऑल्सो. आप लोगों के लिए भी ये ईजी रहेगा, क्योंकि अगर आप साथ साथ बनाएंगे. हेलो. सी क्विलिंग सप्लाईज़ का तो ऐसा है कि आपको ऑनलाइन आप देख सकते हैं. ऑनलाइन बहुत सारे आई कैन से चीज़ें हैं जो आपको इजीली मिल जाती हैं. और अगर मैं अपनी बात करूं तो क्विलिंग सप्लाई में वी जस्ट सप्लाई द शीट्स. तो अगर आपको कुछ ऐसा क्विलिंग शीट्स की, क्योंकि बहुत सारा कलरफुल, because we are not like into strips now, we are just selling the sheets. तो अगर आपको क्विलिंग शीट्स की नीड है तो आप you can contact on any of the social media sites. You can just send a text and we will revert you back. बाकी अगर आपको स्ट्रिप्स वगैरह लाइक कट स्ट्रिप्स चाहिए, कटेड स्ट्रिप्स चाहिए, बिकॉज आई जनरली प्रेफर कटिंग माई ओन स्ट्रिप्स, क्योंकि मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई साइज़ चाहिए होता है, किसी के लिए कोई साइज़. तो स्ट्रिप्स बेसिकली मैं खुद ही लाइक कट करती हूँ. तो अगर आप यू आर वन ऑफ दोस्त की जो अपनी स्ट्रिप्स खुद कट करते हैं, तो यू कैन गो फॉर लाइक पेपर्स. तो पेपर्स आपको A1 क्वालिटी मिलेगा, एंड these all are like acid free papers. So does anyone know the difference between an acid free paper and a paper which has like acid? What's the difference? Like, why do we prefer using acid free papers for our works and projects? Does anyone know that? Okay, I'll tell you. Because quilling artwork जो है वो ऐसी चीज़ है कि एक दिन में तो नहीं बनता. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेशेंस. तो हम ऐसा पेपर क्यों यूज़ करें जो कि विद टाइम ख़राब हो जाए या फेड हो जाए. मतलब इतना महंगा हम आर्टवर्क सेल करें और उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो इतनी जल्दी डेप्रिशिएट हो जाए, तो इट्स नॉट गुड. तो इसलिए हम एसिड फ्री पेपर यूज़ करते हैं, जिससे कि एसिड फ्री पेपर जो होता है वो विद टाइम इतना जल्दी फेड नहीं होता. जैसे कि यू मस्ट हैव सीन न्यूज़पेपर.
तो न्यूज़पेपर क्या होता है, जैसे आप बहुत दिन तक उसे रखते हो तो वो येलोइश पड़ जाता है, राइट? क्योंकि उसका इट्स अ न्यूज़पेपर, 3-4 रुपए में आता है उसका। लाइक उसका जो मेन क्रक्स है हम तक पहुंचाने का वो है न्यूज़, तो वो उस हिसाब से दैट पेपर इज़ बेस्ट। लेकिन हमारा जो मेन वर्क है दैट इज़ रिलेटेड टू पेपर, हम पेपर से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का होगा, आपको उसमें कलर्स वैरायटीज बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है? सो पेपर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, see, you have to showcase more of your work for like selling it, and you can display it on various platforms, various social media, and even on various e-commerce websites. So like it works like that. And if your products are really good and of good quality, then obviously they'll get a good response from people. And yes, sometimes it takes time to sell your work, but when you do a lot of hard work on that, then eventually it will happen. So as you said, you are 15, so just currently focus more on improving your skills, more on working part. So what I'm doing is, now I have more of these coils, so I'm just joining them, these two together like this. You can see I've put the glue and I have joined these two like this, and now I will put the glue to one like this on the back over here, and then I'll join this third one. Okay, so I'll just show you. So it will look like this. It will look like this. Okay, so you have to join three like coils like this. So I'm joining right now. See, no one is interested is always there, but you need to see how you can pitch to people, how you can attract people with your art keys. See, it's like, if it's beautiful, obviously people will like it, and with time they will get interest in that. And if your neighbors, neighboring society, neighboring people are not interested, then reach out to people through social media. It's a big tool we have in our hands. So just reach out to more and more people, and when people like appreciates your art, then it really gives you a lot of confidence. Yes, it's a new art. It's not that popularized in India. बहुत जगह अभी लोगों को पता भी नहीं है कि व्हाट इज क्विलिंग। एंड ये मैं किसी छोटे टाउन की नहीं, इवन इन बिग सिटीज ऑल्सो, लाइक पीपल समटाइम्स ऑल्सो गेट अमेज्ड बाय लुकिंग एट दिस कि ओ दिस इज मेड विद पेपर, हाउ कैन यू make it with paper? So like these are the things, but this also gives you confidence that yes, you are doing something great, people are liking it. You're welcome. Just keep doing your work. सो लाइक मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। लाइक इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, तो ऐसा नहीं है कि सबने बोला कि वाओ यू आर डूइंग क्विलिंग, इट्स ग्रेट, जस्ट स्टार्ट विद इट। नो, इट्स नेवर लाइक दैट। सो बिकॉज आर्ट इज समथिंग जो yes, I'm trying to aware more people about the art, and you also try from your side, because if we all as a community will try to अट्रैक्ट पीपल विद आर आर्ट, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे कि व्हाट इज़ दिस आर्ट, तो शायद लोगों को पता चलेगा, देन दे विल बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग दिस आर्ट। एंड क्विलिंग इज़ नॉट अ वेरी न्यू आर्ट, इट्स अ वेरी एंशियंट आर्ट, और ये आज से नहीं है, ये बहुत अर्लियर टाइम से है। और
इसको पहले बेसिकली जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था क्विलिंग का, वो इसको जो चर्च में नन्स वगैरह वो लोग इसको यूज़ करते थे डेकोरेट देयर रजिस्टर्स। तो इस टाइप से ये आर्ट स्टार्ट हुआ था, बट नाउ इट हैज़ गेन्स लाइक more popularity over the world. But yes, in India not that popular, and in many countries it's not that popular, but we have to make it popularized, because if we are doing this art, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इस पे, तो हमें अपना आर्ट को बाहर लेकर जाना होगा, लोगों तक दिखाना होगा, बताना होगा कि हाउ लाइक कैसा है ये आर्ट। लाइक यू कैन सी माई इयरिंग्स, दिस इज ऑल पेपर and these are all like beads, and this is also handmade. So there are many things we can do with like paper और द पेपर आर्ट। सो यू कैन सी मैंने बहुत सारे अब ये टीयर ड्रॉप शेप्स बना लिए हैं। मैं इसको पेस्ट करती हूँ टर्न बाय टर्न। तो हम सबको मिलकर ये एफर्ट करना होगा कि नॉट आई एम नॉट ओनली सेइंग अबाउट पेपर आर्ट। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट करते हैं, एंड आई वुड रियली लव टू कनेक्ट विद दैम, क्योंकि मुझे भी लाइक बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से जुड़ती हूँ जो इस डिफरेंट तरीके की आर्ट्स करते हैं या कोई भी आर्ट करते हैं, बिकॉज आर्ट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर मी। सो येस, आई लव कनेक्टिंग विद डिफरेंट पीपल। तो आप भी जिन जब लोगों से मिलें, तो योर फर्स्ट थिंग शुड बी कि डू यू नो अबाउट क्विलिंग, लाइक व्हाट इज़ दैट। तो आप अपने आर्ट के बारे में जितना ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, तो आई थिंक लोगों को उतना ज़्यादा आपके आर्ट के बारे में पता चल पाएगा, एंड वो आगे और लोगों को बताएंगे, तो उससे वी कैन मेक आर आर्ट पॉपुलर। तो आप देखो मैंने इसको, येस, सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट माइंड कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो लाइक इट वॉज ऑल्सो लाइक दैट कि व्हाट इज़ क्विलिंग, क्या होता है, इट्स नथिंग। बट ठीक है, आई जस्ट लाइक wanted to do it. I dropped my job, dropped everything, and like day in day out I was like just doing quilling because I just loved this. ओके, अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। मैंने फर्स्टली आई हैव प्लेस्ड ऑन द टॉप एंड द बॉटम, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने टॉप पर, उसके बाद वहाँ यहाँ दो प्लेस करूँगी, यहाँ यहाँ दो प्लेस करूँगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और उसके बाद हम भरेंगे इसके अंदर का डिज़ाइन, इनर डिज़ाइन उसके बाद हम करेंगे। और इनर डिज़ाइन विल बी लिटिल डिफरेंट। सो यू कैन सी हम सिंपली इसको सिर्फ कुछ कॉइल्स का यूज़ करके हम इसको कितना ब्यूटीफुल क्रिसमस डेकोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन सी। सो आई स्टार्टेड ऑलमोस्ट 3 years, यू कैन से 3 years बैक। सो सिंस देन, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो आई वॉज नॉट लाइक कि मुझे ये सेल करना है, या बिकॉज आई जस्ट लव दिस आर्ट, एंड दिस आर्ट इज़, आई कैन से दिस आर्ट इज़ सो थेरेपेटिक एंड सो मेडिटेटिव। अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर कभी आपको ऐसा लगता है कि, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल, आजकल सब कुछ ऐसा है कि डिप्रेशन एंड ऑल, हम बहुत जल्दी उस चीज़ की तरफ चले जाते हैं। तो अगर कभी आपको लगता है, यू कैन जस्ट ट्राई दिस क्विलिंग आर्ट, इट्स वेरी मेडिटेटिव एंड वेरी थेरेपेटिक। यू कैन सी। सो येस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वॉज नॉट हैविंग एनी ऑफ द क्विलिंग मटीरियल्स, नॉट इवन दिस क्विलर। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्विलिंग क्या है। आई जस्ट रैंडमली सॉ वन डे ऑन इंस्टाग्राम वन पोस्ट एंड आई जस्ट लव्ड इट। मुझे नहीं पता था वो कैसे बना है, क्या बना है, बट मैंने सोच लिया कि मुझे अब कुछ तो बनाना है, जो कि क्योंकि पेपर ने मुझे अट्रैक्ट किया, एंड पेपर वॉज लाइक पेपर आर्ट। मैंने खुद उससे पहले आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट। ओके, तो यस, क्विलिंग मैंने, आई हर्ड क्विलिंग, बट इट वॉज ऑल अबाउट द क्विलिंग गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन एंड ऑल दैट स्टफ। इससे ज़्यादा मैंने क्विलिंग के बारे में, मुझे नहीं पता था कि वी कैन क्रिएट मैजिक विद क्विलिंग। तो तब से मैंने स्टार्ट किया, एंड ना ही क्विलर था ना ही कुछ था, तो बस A4 शीट्स थी पास में, उसकी ही स्ट्रिप्स कट करी जल्दी से एट द मोमेंट ओनली, क्योंकि मुझे था कि मुझे ये कुछ तो करना है एंड आई नीड टू डू दिस आर्ट। सो उसी वक्त मैंने स्केल रूलर लेके स्ट्रिप्स, एंड मेरे को नहीं पता था इसको रोल कैसे करना है, क्या है, बट आई स्टार्टेड रोलिंग इट विथ माई हैंड्स, एंड यू नो इट हैपेंड। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुआ। आई स्टार्टेड रोलिंग, आई गिव इट फर्स्ट ट्राई, सेकेंड ट्राई, और वो
हो गया मतलब। फिर उसके बाद आई सर्च्ड मोर एंड मोर अबाउट कि क्या है कूलिंग, और इसके हमें क्या टूल्स होते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड। कुछ कुछ मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप्स कभी अटेंड करी, सो इट वाज मोर ऑफ लाइक दैट। और वहीं से आई जस्ट गॉट, एंड शायद मैंने सारी चीज़ें करते करते सीखी हैं। तो लाइक आई हैव मोर ऑफ एक्सपीरियंस कि कहाँ पर लोग लैक करते हैं, कहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम आती है। यस, बट आई थॉट कि आई हैव टू डू इट लाइक, स्टार्टिंग से ही मेरा ये था कि मेरे को करना है तो विथ प्रॉपर नीटनेस। तो मैं हमेशा, मेरा एफर्ट यही रहता है कि चाहे मुझे 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 आवर एक्स्ट्रा लग जाए, बट इट शुड बी ऑफ A1 क्वालिटी। यू कैन सी सम ऑफ द फ्रेम्स एट द बैक। आई विल शो यू दिस कार्ड. So this is basically the front of a wedding card, you can say. So this is also all quilling. So you can make such like decorative things with quilling. एंड बहुत सारी लाइक चीज़ें हैं जो मैंने क्रिएट करी हैं विद टाइम. सो अगर मैं वहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ जहाँ मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था, कोई टीचर नहीं था कि हाउ टू लाइक डू इट, तो फिर ऑब्वियसली कोई भी कर सकता है. एंड ऐसा नहीं है कि यू लाइक गेट ऑटोमेटिकली यू गेट द सपोर्ट कि हाँ हाँ चलो चलो, अब आपको क्विलिंग करना है आप क्विलिंग करो, या फिर आपको कोई भी आर्ट करना है आप वो परस्यू करो. नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट येस यू हैव टू मेक एन एफर्ट एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग हैपन्स. So yes, I was saying कि I love connecting with people who like do different kind of arts, and um, I am thinking to bring something on with the people who do different sort of arts. Or there are many friends of mine and many people I know who are working in like big corporates companies, but yes they have their interest and they are pursuing their hobbies and interests too. So, yes, I would like to connect with them too. So, maybe we'll be bringing the series on that too. But for tomorrow, we will see like what we will be doing. Thank you. Okay, that's great. You and your brother started. So you're just 15, you have so much of time. You can. That's great. You are still doing it and just continue doing it, because now you are doing it. Maybe in the coming time 4 5 people from your neighbors will start doing it, and then automatically a community will build and you will just enjoy it. So just suggest this to more and more people, like what are the benefits of quilling, you can tell them, and they will surely love this art. Because there are many friends of mine who just get attracted because they feel ki how can you create something like this with paper. Okay, so like this, we have already created this much, and there are 2 3 more. I'll just join them all. So the people who have joined right now or who are just joining it, I'll just tell them all. So firstly, we have made this big round circle which is there in between. For that, I have taken this colorful strip and this color strip, and then this is a straight strip. I have just given it a curl with my hands. You can just give it a curl like this with your hands, and then you can just easily start rolling it. Or if your strips are of a lower GSM, lower density, then you can just roll them around any of the round objects that you have nearby, and it will be great. So after rolling that, we just
started making the round tight coils with the help of this quilling needle. And after making the round tight coils, this is the quilling board that I'm using. And if you don't have any quilling board, then there is an option for you. The way you have created this circle, you can create a smaller circle like this, and then you can just place your coils in between that circle, so it will be almost like this quilling board. So you can get the same size. So basic motive for using this quilling board is to get the same size of all the loose coils. And then after making the loose coil, I have just pinched it from one side to convert them into teardrop shapes. So these shapes are basically called teardrop shapes. So this is how we have made this. So you can see it is already looking beautiful. Like, I'm finding it beautiful. So this is okay. So we have created this. Now we'll create a design on the inner part. Okay. So for the inner part, I am taking these two strips together. Okay. And this is a design I'll be making using my quilling needle. So I will firstly put these two strips inside my quilling needle. Uh, okay, done. Okay. So now you have to start rolling it. I will just roll it, and then I will take my quilling needle out. Okay, this much is done. Now I will leave this much of space. You can see. Actually, for now we are doing very simple quilling, and many people out are there who doesn't know about this quilling needle. So that is why I'm not using the electric quiller right now. And because there are not many of the tight coils, so I'm just doing it with this only. So I have left this much of space, and then just start rolling it again. When you reach this point, like nearby the first roll, then just take this out. Okay, so it will be like this design will be like this. So this way we'll be creating this design. Electric quiller I use when I have to make tight coils, or when I have to make you can say 3D creatures. I will show you one Powerpuff Girl that I created. I think you must have seen it in on my profile also, but other people who are new here, I'll just show them that. So this is the design I'm making right now for the inside portion. And I will share the final look on YouTube also. I'll share the image so you can see what we made today. And for tomorrow's suggested Santa, okay, we'll see if we get any other suggestion, because you're already done with one Christmas quilling, so we'll see. Because I wanted to do something like that can have more of a different patterns and skills too, so that people can learn this also, and which they can easily apply and use. Yes, I will just show you. Wait for a second. So this is something we have created till now. Okay, and now we are creating a pattern जो कि हम इसके अंदर fill करेंगे. Okay, अब ये पैटर्न हम इसके अंदर कैसे फिल करेंगे? ये पैटर्न हम इसके अंदर ऐसे पेस्ट करेंगे. ओके, यू कैन सी. तो अभी ये थोड़ा सा हमें और चाहिए होगा पैटर्न, तो मैं कुछ थोड़ा सा और बना लेती हूँ, एंड देन आई विल स्टार्ट पेस्टिंग इट. ओके,
सो आई होप अगर कोई इसे कर रहा है साथ में तो वो कर पा रहे होंगे, या फिर अगर कोई करना चाहता है तो दे कैन डू इट लेटर ऑन. राइट नाउ दे कैन सी हाउ आई एम डूइंग. ओके. So from tomorrow we'll do it at 8:30 or maybe 9. I'll just update you about that. And anything anyone wants to say about quilling, like हुआ there जिसको कि नहीं पता था about quilling from first, or if there is any quilling artist, so they can let me know how they started their quilling journey. Was it easy for them to start, or how was it? After that I'm just pasting it, okay, so that it doesn't comes out. सो इट्स आई थिंक इट्स पेस्टेड. अब मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगी. ओके, हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं कुछ इस तरीके से. वी विल पेस्ट इट. सी, वी विल पेस्ट इट लाइक दिस. तो मैं सबसे पहले, अब इसको पेस्ट करने का इजी वे यही है कि आप इसके इंटरनल पार्ट पे ग्लू लगा दो एंड देन यू कैन जस्ट ईजिली पेस्ट इट. इसको हम आराम से पेस्ट कर पाएंगे. Because I thought of coming live on YouTube today. That's why I'm not coming live on Instagram. You can join me here too. So अभी मैंने इस पैटर्न को इसके इंटरनल पार्ट में पेस्ट कर दिया है. यू कैन सी. सो यू कैन, इसका लुक अभी हमें और भरा भरा सा लग रहा है. एंड हम इसको ऐसे करके कहीं भी हैंग भी कर सकते हैं. ओके. और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी. लाइक नाउ आई सॉ, जैसे कि मैंने इसके जो बाहर के टीयर ड्रॉप शेप्स बनाए हैं, अगर लाइक अभी ये कुछ ऐसे लग रहे हैं, बट आई फील कि अगर इसमें मैं एक एक कोटिंग और इस पेपर की दे देती तो इसका लुक कुछ ऐसा आता. ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं. लाइक आपने एक टीयर ड्रॉप शेप बनाया, उसके बाद बाहर से आप उसको किसी और, तो वो एक ड्यूअल कलर इफेक्ट आपको देगा. ठीक है, तो हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं. तो आज के लिए इट वॉज लाइक फर्स्ट एपिसोड ऑफ द क्विलेथॉन दैट वी हैव स्टार्टेड. और पूरा इस 1 वीक आई विल बी कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब, सो यू कैन ज्वाइन मी हेयर. सो दिस इज़ समथिंग वी क्रिएटेड टुडे. इट्स लाइक अ क्रिसमस डेकोर थिंग. और अभी अगर आपको ये, अगर आप चाहो तो इसके बीच में यही सेम पैटर्न आप और ज़्यादा भी फिल कर सकते हो, या फिर एक सिंपल टाइट कॉयल बनाकर आप इसके बीच में उसको प्लेस कर सकते हो, तो ये पूरा फिल हो जाएगा. या फिर अगर आपको ये सिंपल एज इट इज़ अच्छा लग रहा है तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं. तो आपने देखा ये कितना सिंपल टू मेक था, कि मतलब लाइक विद इन एन आवर हमने इसे कंप्लीट कर लिया. तो अगर आपके पास भी लाइक 1 आवर, आई थिंक हर कोई अपने लिए निकाल सकता है पूरे दिन में. अगर आप वर्किंग हैं या फिर आप नहीं नॉन वर्किंग हैं, स्टूडेंट हैं, तो 1 आवर आप इस आर्ट को दे सकते हैं. एंड आई कैन बेट कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा. There's no such name, like it's for the Christmas decor. You can use it for decoration purpose, and you can you can give a unique name to this. So this is basically a decoration piece. अगर आप चाहो तो आप इसे किसी किसी भी बेस के ऊपर पेस्ट करके आप इसको फ्रेम भी करवा के रख सकते हैं. Yeah, it can look, it's looking like a snow, you can say snowflake. सो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं. आप किसी लाइक आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. या इट्स लुकिंग लाइक अ स्नोफ्लेक. आप इसको वाइट बेस पर रखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन यू. एंड इन द स्टार्टिंग आई लाइक
ये मैंने कार्ड आपको दिखाया था जो कि आरिस फोल्डिंग टेक्निक का यूज़ करके बना है. सो इट्स ऑल्सो पेपर. सो एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू पेपर, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दैट. The paper I am using is wait. The paper I'm using is Sona paper. And I also use Brustro Canson. So like the color, whatever color I like, I go for that brand. And basically all these papers are acid free paper. So it's not like that it will fade up with time, nothing like that. And you can also see my earrings which I made using the paper only. So yes, we can do many things with that. And GSM is 140 and this is 120. I basically use the paper with 120 GSM. Below that, like 90 or 100 GSM paper I use for making tight coil mandalas, tight coil flowers. I am not having any made flower, but yes, for making things like this type of flowers, I'm not having right now with me. So for that I use 90 to 100 GSM, and I even use 250 300 GSM paper for like. Yes, I can. Like I told in the starting, ki I can like we at Rawat Craft we supply this paper, but only in the form of sheets. तो अगर आपको sheets चाहिए तो I can help you out with that. I can supply that. For costing and all, you can just connect me over any of the social media sites of mine. There I can directly, or my team will directly contact you. So we made this today, this little Christmas decor. It's looking more of like a snowflake, and it's very easy to make. Any one of you can make this. Okay. And if you have any problem, any issues in making this, then you can directly comment below or contact. And for the next 7 days, we'll be coming live every day on YouTube. So this was all for today. I think we can wind up this session, and we will connect tomorrow again. So be ready with your quilling tools. Anything will whatever we'll be making, like maybe it can be but it will be like related to quilling only. It will have an essence of quilling in it for sure. Okay. So this was all for today. I think now you all can make it. Thank you so much for subscribing, and the people who haven't subscribed to the channel, please do subscribe, and you can also join our live sessions. Thank you so much. Yeah, you can share it with your friends too. They can also connect, and maybe they can like this art too, and they want to try it, they can try. Okay, so it was nice coming live on YouTube today. I hope you all must have enjoyed it. I enjoyed it a lot. So we can connect now. We'll connect tomorrow. Timing I will just confirm. It's 8:30 or 9. Not before that, not after that. Okay. So bye bye for today. And this was something we created today. You can create it yourselves. It is fine. Okay. Okay. We'll see if we can come at 8. I'll just update it, and then you can see. So thank you so much for joining me today, and please do subscribe to the channel. Yeah, sure. I'll also be coming live for the coming more 6 days, so you can join me. Welcome. So bye bye for today. Now we will meet tomorrow. I hope you all will be joining me again, and you will share this with your friends too, so that they can also get the benefit and they can also join the session. You're welcome. Okay, so bye bye for today. I'm just ending this session now, and we will connect tomorrow again. So till then, you can make this
decorative piece, and tomorrow we'll come up with something new, and then you can try that too. So thank you so much. Bye bye. Do subscribe to the channel, and also do press the bell icon so that you can get all the notifications. Thank you.